Good morning, and this is like our second lecture, and we are going in depth about what is international trade and how it works. And it's a very complicated topic. Let me be very clear with you. आपल्याला बघताना खूप सोपं वाटतं, जसं आपण नॉर्मल दुकानात बसून ट्रेड करतो, जैसे हम लाइक किसी शॉप में बैठते ट्रेड करते हैं उसके जैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता. इंटरनेशनल ट्रेड में इतने सारे डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं. पॉलिटिकल डायमेंशन, डिफेंसिव डायमेंशन इन द सेंस आर्मी वाले डायमेंशंस, उसके साथ साथ इकोनॉमिक डायमेंशंस. तो ये सब देखने के लिए उसमें बहुत सोशो पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होने के लिए हमें वो सारे चीज़ों का स्टडी करना पड़ता है टू गेट टू नो इंटरनेशनल ट्रेड. And international trade majorly brings us a lot of income, lot of foreign exchange. और उसकी वजह से ये बहुत ही important है even for your careers. If we think international trade में ही ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर जाने का scope होता है. Okay, so it is like one of the field that can take you to the success peak. So be very aware of it. Let me just go to our first slide for today. It's a comparative cost theory. It is like a classical theory. मतलब बहुत ही first of all international theory. Okay, but before that it's a comparative cost, right? And I want you to know what is comparative cost advantage. That is a very important term we are going to see during this lecture. Okay, let me just share my screen with you so that you will get the hang of it. Okay, just a minute. Yep. So तुम्हाला दिसतंय का? आणि मुख्य म्हणजे ऐकायला येतंय का? मी आत्ता पॉज केली व्हिडिओ, पण बघा बरं, ऐकायला येत नसेल तर मला सांगा. ये जब वीडियो खत्म होगा, मैं ये वीडियो में आपने क्या देखा और आपको क्या समझा, इसके बारे में आपको पूछने वाली हूँ. सो वॉच इट विथ वेरी केयर. ओके. Comparative advantage is the ability of an individual, company, or country to produce a good or service at a lower opportunity cost than its competitor. I'm pausing it. Read it aloud for yourself. Comparative advantage: the ability of an individual, company, or a country to produce a good or service at the lower opportunity cost than its competitor. कमित कमी, बहुत कम से कम जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी, उस वक्त किसी गुड या सर्विसेज का प्रोडक्शन या प्रोविजन करना, सो दैट आपके कॉम्पिटिटर से आपको कम पैसे में वो प्रोड्यूस करने का एडवांटेज मिलता है. दैट इज व्हाट कंपैरेटिव एडवांटेज. अगर दो लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से एक को प्राइस कम लग रही है क्योंकि इसके पास कुछ एडवांटेज है वो ए चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, then at that time we can say that a person who is producing at a lower opportunity cost is at comparative advantage. Okay. Having a comparative advantage doesn't mean that one entity is absolutely better than another at producing a good or service. It means that it sacrifices less to do so. Suppose David and Lawrence want to raise money for their favorite charity through a bake sale. On a
pies to sacrifice, David has a comparative advantage over Lawrence in cakes, so he should make only cakes for the fundraiser event. If both examine their comparative advantage in pie baking, David will give up 2 cakes for each extra pie he bakes, while Lawrence's opportunity cost is only 1.3 cakes. Lawrence should then focus on pie baking only, since he has a comparative advantage over David. If they follow this measure, David makes 12 cakes and earns $360. Lawrence bakes 6 pies and earns $180. Together, they've earned $540, which is $60 more for their charity than if they hadn't specialized based on comparative advantage. Yeah, so what did you see or what did you get from that video? Even if you didn't get anything, I'm okay with it. But just you have to talk, right? तो क्या समझा ये वीडियो से आपको? What is a comparative cost advantage? और ये क्या बोल रहे थे कि एक्चुअली कैसे होने वाला है? Open your mics, otherwise I will have to do very nice things. You know what I do in these days? Well, you will have to raise your hands. I can see who is actually actively present in the class. So raise your hands. I can see 23 participant and raise your hands. You know how to raise your hands, right? Go to your participants in the maybe in a mobile. I don't know exactly what do you do in a mobile, but and then raise your hands. Yes, I can see one hand. Just start doing it. Otherwise I will think कि आप सिर्फ यहाँ पर हो और कहीं दूर गए हो. तो अगर मुझे पूरे के पूरे लोगों के हाथ नहीं दिखते तो जिनके भी हाथ नहीं दिख रहे, I will not give them present. Believe me, I'll mark them absent. So do it fast. I can see it. मेरा टाइम गया तो भी चलेगा. क्या है, अगर आप मतलब आंसर नहीं करना चाहते तो यही सही. I'll do this. गुड. तो ये जो नीचे वाले लोगों के मुझे हाथ नहीं दिख रहे, तो ये सिर्फ इन्होंने लॉग इन किया है और ये कहीं पे चले गए, ऐसा मैं समझ लेती हूँ. ओके, सो लो डाउन योर हैंड्स. I'll ask in a 5 minutes again to raise your hands. ओके. तर मी तुम्हाला खूप साध्या ह्याच्यात विचारलं आणि मला वाटतं तुमच्याकडच्या बऱ्याच लोकांना पुढे भरपूर काय काय शिकायचंय, बरोबर ना? सो मी तुम्हाला विचारलं तर आता तुम्ही लो डाऊन करू शकता तुमचे हँड्स. की कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट असं जेव्हा मी म्हणते तेव्हा तुमच्या मनात काय येतं? त्या व्हिडिओत काय बघितलंय किंवा काही इट डझंट मॅटर ॲट ऑल. यू जस्ट हॅव टू से की काय मनात येतं तुमच्या कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट असं म्हणताना. इज देअर एनीवन? मला वाटत होतं की तुम्ही टी-वायला गेलात, त्याच्यामुळे तुमच्याकडे बोलण्याची जास्त चांगली पॉवर असेल. मला एफ-वाय मधून सुद्धा चांगले रिस्पॉन्स मिळतात याच्यापेक्षा. हरकत नाही. आपण असं म्हणू की तुमच्या क्लासमध्ये तेवढा स्ट्रीट स्मार्टनेस कदाचित कमी पडत असेल. अँड आय एम रिअली सॉरी फॉर यू अबाउट दॅट. द स्ट्रीट स्मार्टनेस इज व्हेरी नेसेसरी. ओके. सो कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट असं नुसतं म्हणताना किंवा कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ॲडव्हान्टेज असं म्हणताना सुद्धा माझ्या डोक्यात एक गोष्ट येते की कंपॅरेटिव्ह म्हणजे कुठच्या तरी 2 गोष्टी आहेत. कारण 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त गोष्टी असल्या, इफ देअर आर मोर दॅन वन थिंग्स, देन ओनली वी कैन कंपेयर. एक से ज्यादा चीजें तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं. कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, तो खर्चे में कंपैरिजन है. सो 2 या ज्यादा चीजों के खर्चे में कंपैरिजन है. और ये खर्चे में क्यों कंपैरिजन है? क्योंकि इससे कुछ एडवांटेज, कुछ बेनिफिट लेना है. दैट्स इट. That's what really I understand from just one word or one phrase, comparative cost advantage. आणि तुम्ही काही उत्तर न दिल्यामुळे मी खरंच डिसअपॉइंटेड आहे. बिलीव्ह मी. पण ठीक आहे. वी आर नॉट गोइंग टू go in depth in that right now. So let's see the comparative cost theory. That is like a first theory we are learning from today. The classical theory of international trade is known as theory of comparative cost. म्हणजे क्लासिकल थियरी म्हणजे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जे है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो थियरी बताई है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इसे कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी या फिर थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट बोला जाता है. द थियरी वाज फर्स्ट propounded by well-known classical economist David Ricardo.
सो मला सांगा, जर समजा जोड्या लावायला आल्या किंवा मॅच द पेअर्स करायला आल्या, what will be the answer? Comparative cost theory. Who has propounded the theory? David Ricardo. Correct. David Ricardo. That's very nice. The theory was further developed and refined by John Stuart Mill, Keynes and Bastable. सो आत्ता लक्षात ठेवताना डेफिनेटली ही थिअरी पुढे डेव्हलप झाली आहे लक्षात ठेवायला लागेल. ही पुढची नावं थोडी कमी लक्षात ठेवलीत तरी चालतील, पण डेविड रिकार्डो यू मस्ट रिमेंबर अबाउट हिम. ये आगे वाले नाम थोड़े ज्यादा इंग्लिश है आई नो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये थियरी रिफाइन की गई थी और उसमें मिल, केयरनेस और बेस्टेबल ने इन्होंने रिफाइन की थी. लेकिन ओरिजिनली किसने दी थी? डू यू नो नाउ? ओरिजिनली ये थियरी किसने दी थी? डेव्हिड करेक्ट, डेव्हिड रिकार्डो. मला असं वाटतंय की आपल्याकडे एकच उत्तर देणारी माणसं असतील तर त्याला काही अर्थ नाहीये. मी प्रश्न दिला आणि तुमची जर उत्तर आली नाही तर मी तुम्हाला परत तेच प्रश्न विचारत राहीन. आणि कसं आहे, ऍट द पॉइंट तुम्हाला कुठेतरी बोर झालं पाहिजे किंवा मला बोर झालं पाहिजे या बाबतीत. ठीक आहे. द मॉडर्न एक्सपोनेंट्स ऑफ द थिअरी आर अमेरिकन इकॉनॉमिस्ट F.W. Taussig and the German economist Gottfried von Haberler. गॉटफ्रीड फॉन हाबरलर. ओके, पण ठीक आहे, मला माहिती आहे खूप सारे नाव आहेत. आत्ता आपण या नावांकडे काही लक्ष द्यायला नको. ओके, पण मला या टर्मकडे लक्ष द्यायचं आहे. ओके, इफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हॅज द सेम सोर्सेस अँड वेअर इन द सेम स्टेज ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, there would be no international trade because there would be no gain from such a trade. If सभी के सभी कंट्री में पूरे के पूरे सेम रिसोर्सेस है, सभी के सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेम स्टेज पे है, देन क्या होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वो होगा ही नाही, क्योंकि सभी देशों में सभी सेम चीजें बन रही है. असा विचार करा की आपण जर समजा सिंगापूरशी किंवा चायनाशी ट्रेड करतोय, सो चायनाशी ट्रेड करताना चायनाकडे काहीतरी जास्त आहे किंवा काहीतरी कमी किमतीत चायनावाले बनवतात आणि आपल्याला आपण जे बनवतो त्याच्यापेक्षा कमी किमतीत विकतात, म्हणून आपण चायनाकडून घेतो की नाही. सिमिलरली आपल्याकडे ज्या गोष्टी बनतात त्या इतर कुठच्या तरी देशापेक्षा कमी किमतीत बनतात. सो जर आपल्याकडून त्यांनी घेतलं तर त्यांचाही फायदा होतोय आणि आपलाही फायदा होतोय. सो जर समजा अशा प्रकारे इफ देर इज नो गेन इन अ ट्रेड देन देर विल बी नो इंटरनॅशनल ट्रेड. अशा प्रकारे फायदा जर इंटरनॅशनल म्हणजे होत नसेल कुठच्याही ट्रान्झॅक्शन मध्ये, तर इंटरनॅशनल ट्रेड होणारच नाही. आपल्याला यातल्या कुठच्याही थिअरी बघायला लागणार नाही. But if there are differences in natural, human and capital resources in different countries, international trade is bound to emerge in course of time. So as we already know, हर एक कंट्री में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, अलग अलग ह्यूमन फोर्सेस होते हैं, कैपिटल रिसोर्सेस होते हैं, और उसकी वजह से अलग अलग टाइप की अलग अलग क्वालिटी की चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज वो कंट्री में बनती है. और इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होने की संभावना बढ़ती है. इंटरनॅशनल ट्रेड होतोच होतो कारण प्रत्येक कंट्रीत काहीतरी स्पेशलाइज्ड बनतं. असा विचार करा की अगदी परदेशातला पण सोडून द्या, फक्त आपल्या देशातला विचार करूया. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये ऐसे स्टेट है जहां पर एप्पल्स बनते हैं, और कोकण, दापोली, रत्नागिरी, देवगढ़ ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मैंगोज बनते हैं. राइट, मैंगोज के लिए वो स्पेशलाइज्ड है क्योंकि हमारा नॅचरल रिसोर्सेस और वर्कफोर्स उसके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है. आणि म्हणूनच नेहमी असा विचार करा की आपल्याकडे सफरचंद बाहेरून आणून विकत घ्यावी लागतात, दॅट इज वी कॅन से इम्पोर्ट. पण आपण देशातल्या देशात जरी विचार करत असलो तरी आपण असा विचार करू शकतो टर्म लक्षात घ्यायला. आणि आपण जेव्हा हापूस आंबे, अल्फान्सो मँगो बाहेर जाऊन विकतो, whenever we sell them outside, maybe to Jammu Kashmir, maybe to Himachal Pradesh or any other state, any other country, then we can say we are exporting because we have difference in natural, human and capital resources. Okay, each country would tend to produce those commodities that are best suited to its resources structure. प्रत्येक कंट्री पण प्रत्येक रिजन त्याच प्रकारच्या कमोडिटी प्रोड्यूस करेल ज्या बेस्ट सुटेड असतील त्यांच्या रिसोर्स स्ट्रक्चर प्रमाणे. त्यांच्याकडे जे जे अवेलेबल है, उनके पास जो जो नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी तरीके से अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से ही वो कमोडिटीज प्रोड्यूस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल गल्फ कंट्रीज में
खजूर, डेट्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही फ़ेमस कंट्रीज़ है। तो वो प्रोड्यूस करते समय जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग डेट्स, दैट विल बी रिगार्डिंग क्रूड ऑयल, माइन्स मतलब मिनरल्स ऐसे चीज़ों के बारे में ही होगा। वो अभी अल्फांसो मैंगो बेचने वाले नहीं हैं। तो जहाँ पर जो अच्छा है, अवेलेबल है, उसके हिसाब से बनेगा। दिस इज़ नोन एज़ द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। और ये सब अगर हम लेमन्स टर्म में मतलब बहुत ही ईज़ी वाले टर्म्स में बोले, तो यही सब चीज़ों को कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी या फिर लॉ ऑफ कंपॅरेटिव्ह एडवांटेज बोला जातं. मला सांगा, मी ही जी बडबड केली, त्यात तुम्हाला काय लक्षात आलंय? माईक ओपन करा. मला किमान 5 उत्तरांची अपेक्षा आहे. सो वन बाय वन वी कॅन से आणि मी तुम्हाला विचारू शकते. जर तुम्हाला उत्तर द्यायचं असेल, तुम्ही हात रेज करू शकता. अदरवाईज मी एकेकाला जी माझ्याकडे नावांची लिस्ट आहे पार्टिसिपेंट्सची, त्यातल्या एकेकाला विचारेन अँड आय डोंट वांट दॅट. मतलब अगर मुझे ये नाम दिखता है तो मैं उनका नाम बोलूँगी और आपको वो आंसर करना पड़ेगा। अगर आप आंसर नहीं दे पाते, आपका माइक नहीं खोल पाते, दैट मीन्स आप वहाँ पर नहीं है। आई डोंट मीन कि आपको सही आंसर देना है या गलत आंसर देना है। आपको सिर्फ आंसर देना है। ओके? सो टेल मी ये जो मैंने बोला कि अगर एक कंट्री में एक चीज़ नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेस ये सब अच्छी चीज़ें हैं तो तो वो कंट्री जो चीज़ बनाने के लिए बहुत ही फेमस है, वो ही चीज़ बनाएगी। ओके? सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक। टेल मी कि आपको क्या लगता है कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी क्या बताती है? मॅम, हुँ, आता जसं म्हटलं जातं, की तुम्ही गेल्या वेळेच्या म्हणजे गेल्या सेमेस्टरला पण सांगितलं होतं, की इंडियाला हे अख्ख्या वर्ल्डचं बॅक ऑफिस समजलं जातं. म्हणजे आपल्याकडे सर्व्हिस सेक्टर हे खूप जास्त प्रमाणात आहे बरोबर. इंडस्ट्रीपेक्षा. तर आपण पुण्यात किंवा म्हणजे आपल्याकडे कसं आहे युवा किंवा यूथची संख्या जास्त असल्यामुळे आपल्याकडे किंवा जास्त करून आय-टी सेक्टर वगैरे पुण्याच्या साईडला वगैरे खूप आहे. म्हणजे आपल्याकडे ते बघितलं गेलं तर ते जास्त प्रमाणात आहे इंडस्ट्री किंवा प्रोडक्शनच्या ह्याच्यापेक्षा सर्व्हिस सेक्टरमध्ये जास्त आहे. तर आपल्याकडे ते जास्त त्याच्यावरच फोकस केला जातो. बरोबर. सो म्हणजे असं आपण म्हणू शकतो का, की आपल्याकडे बिकॉज वी हॅव लॉट ऑफ लेबर दॅट इज डेमोग्राफिक डिव्हिडंड अशी टर्म आहे त्याला. ओके. जेव्हा तू लेबरबद्दल बोलतोस तेव्हा. सो अशा वेळी जेव्हा आपल्याकडे खूप सारं लेबर अवेलेबल आहे, त्यावेळी आपण ज्या वस्तू बनवू त्या लेबर इंटेन्सिव्ह असतील. म्हणजे जास्तीत जास्त लेबरचा उपयोग करून निर्माण होणाऱ्या वस्तू असतील. ओके. आणि आपण ते बनवण्यात आपल्यासाठी ते जास्त सुटेबल आहे किंवा तशा प्रकारचे सर्व्हिस प्रोव्हाईड करणं आपल्यासाठी सुटेबल है। जो ऐसे सर्विस हो जो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को इस्तेमाल करते हुए। ओके? तो वी कैन से कि इंडिया में ऐसी चीज़ें बनेंगी क्योंकि हमारे पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है। एकदम बरोबर निशिकांत। इज़ देयर एनीवन? अदरवाइज़ आई एम गोइंग टू से कि ये आप बोलो, आप बोलो। Bhakti, do you want to share something? Or maybe Faisal? I can see No, people. madam. No, madam. You don't have that liberty to say no, madam. You can see what do you think about comparative cost theory? क्योंकि मुझे नहीं पता चलता इस टाइम कि आप कितने मुझे पता है आपको इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा सा काइंड ऑफ टफ गया था तो आई डोंट वांट दैट बिकॉज आई नो हाउ यू थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स ओके लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू अगर आप आंसर्स नहीं करते और मेरा टाइम ऐसा ही चला जाता है तो हमारा पोर्शन कभी खत्म नहीं होने वाला राइट तो आपको मैम यस हं. बोल हां, तर कंपॅरेटिव्ह ॲडव्हांटेजमध्ये म्हणजे खूप स्पष्ट सांगितलंय, की प्रत्येक कंट्रीने किंवा प्रत्येक विभागाने त्याने जो प्रॉडक्ट प्रोड्यूस करतोय, तो हम्म, एका बेस फॉर्ममध्ये किंवा बेस सुटेडमध्ये प्रोड्यूस केला पाहिजे किंवा आता आपल्याकडे कोकण विभागात आंबे केले जातात किंवा नाशिकमध्ये द्राक्ष वगैरे अशी. तर काही म्हणजे पहिल्यांदा एकदम जे पुअर प्रॉडक्ट असायचे तेच प्रोड्यूस केले जायचे. पण आता काही प्रमाणात त्या आंब्यांमध्ये वेगळे-वेगळे केमिकल्स मिसळून ते पिकवले जातात. त्यामुळे थोडाफार
एक बेस्ट फॉर्म मध्ये ते प्रोड्यूस केले जात नाही. त्यामुळे थोडा आपल्या इकॉनॉमिक्समध्ये फरक पडू शकतो. डेफिनेटली बरोबर आहे अगदी. तू म्हणतेस ते एकदम करेक्ट आहे की म्हणजे जेव्हा आपण पूर्वी आपण असं म्हणायचो की जनरली ऐसा होता था कि जो भी नॉर्मल चीजें हैं हमारे लिए जरूरी है वो ही बनाते हैं और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं इन द सेंस सिर्फ अगर आम लाने भी है तो आम हमारे लिए ही बनाएंगे, बाहर नहीं जाकर बेचेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ बोला कि हमारे पास सूटेबल एडवांटेज है कि हम अच्छे से अच्छे आम बना पा रहे हैं, अच्छे से अच्छे आम उगा पा रहे हैं। दैट मीन्स हम उसका बाहर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। एंड इस यही चीज है जो जिसके बारे में अभी हम फोकस करने वाले हैं। दैट इज हमारे पास अगर कंपैरेटिव एडवांटेज है देन वी आर गोइंग टू टेक इट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन प्रतीक्षा आप जो बोल रही थी कि जैसे कि उसके आगे वाली जो स्टेप है कि थोड़ा क्वालिटी कम होना या फिर ऐसे ये चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं मे बी लेटर इन द लेक्चर्स, म्हणजे आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे जहां पर हम ये सब क्रिटिसिज्म्स देखने वाले हैं उस टाइम पे। Okay, let me go ahead. According to this theory, a country tends to specialize in production of those commodities in which it possesses a comparative advantage by virtue of its climate, natural resources, skills of people, capital equipment, etc. सो कशामुळे कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ऍडव्हान्टेज क्रिएट होऊ शकतो? कशामुळे एक कंट्री बहुत ही अच्छे से सूटेड हो सकती है या फिर एक कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सकता है कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके इंटरनेशनली बेचने के लिए। तो इसकी लिस्ट दी है हमें कि मे बी नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल, स्किल्स ऑफ इट्स पीपल मतलब जो वर्कफोर्स है उनके स्किल्स क्या है, और उसके साथ साथ वो कंट्री में कैपिटल इक्विपमेंट कितने अवेलेबल है। इसके साथ साथ comparative advantage बनता है। The term comparative advantage means the spatial ability of the country in question to provide a particular commodity or service relatively more cheaply than other commodities or service. सिम्पली सांगायचं तर एखादी कमोडिटी आपण बनवणं इतर गोष्ट हे जेव्हा इतर गोष्टी बनवण्यापेक्षा आपल्याला स्वस्त जातं तेव्हा आपल्याकडे कंपॅरेटिव्ह ॲडव्हान्टेज असतो। ओके, थोडक्यात सांगायचं झालं तर असं विचार करा, पापड़ बनवणं। ओके, जहाँ पापड़ उद्योग रहते हैं राइट, तो अगर हमने पापड़ बनाना शुरू कर दिया और ये बहुत ही इजी जा रहा है, हमें बहुत कम कॉस्ट लग रही है, दैट मीन्स पापड़ बनाना, और अगर हम अचार का भी बिझनेस सुरू कर रहे हैं, लोणच्याचा बिझनेस सुरू करतोय अगर जर आपण, तर लोणचं आणि पापड़ ह्यांच्यात कंपेयर करताना अगर पापड़ में बहुत कम टाइम में कम कैपिटल के साथ और कम कॉस्ट में बना पा रही हूँ एज कंपेयर टू अचार, देन मेरे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है पापड़ बनाने का एज कंपेयर टू अचार बनाने का। सो माई कंट्री शुड मेक पापड़ and should not make achar for more maximize gain. Are you getting what I am saying? की मग त्या कंट्रीने पापडवर किंवा त्या कमोडिटीवरच कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे सो दॅट त्यांना जास्तीत जास्त फायदा होईल। So, a country will, according to this theory, concentrate on production of those goods and services in which it has cost advantage. So, जेव्हा एका कंट्री बद्दल विचार करतो अपन, so वो कंट्री में, वो इकोनॉमी में इसके ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर ही फोकस रहेगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज है, मतलब जिससे हमें जो प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम से कम कॉस्ट लग रही है, इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज हो रहा है। ओके, लेट्स गो अहेड ऑफ दिस। It was either less suited or has positive cost advantage. The concept of comparative advantage also explains why a country capable of producing a wide variety of goods and services at a lower cost than any other country should concentrate on producing that good or service for which it has cost advantage in the greatest and leave the production of other goods in which it has a positive but least cost advantage to the other countries. Okay, मला माहिती है खूब मोठा वाक्य है, लेट मी मेंड इट। ओके, सो कंट्री को अगर कंपैरेटिव एडवांटेज है तो हम बोल रहे हैं कि सॉरी,
तो हम बोल रहे हैं कि एक किसी कमोडिटी बनाने के लिए बहुत ही कम कॉस्ट पड़ रही है, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वर्कफोर्स बहुत स्पेशलाइज्ड है हमारे पास वो कमोडिटी बनाने का। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मल चीजों में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं, बहुत सारे सर्विसेज ऐसे रहते हैं जो कंट्री में अच्छी तरीके से बनते हैं। ओके, तो फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का क्या होगा? हमें क्या बनाना चाहिए, क्या बेचना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में? तो इसका भी आंसर ये थियरी करती है। ये थियरी बोलती है कि अगर आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे पापड़, अचार, या फिर और क्या बना सकते हैं हम? इज देयर एनीथिंग दैट कम्स विद पापड़, अचार और ओके, सो पापड़, अचार और समथिंग एल्स, मे बी जैम्स। ओके, सो पापड़, अचार, जैम्स ये सब बनाने के लिए हम बना तो सकते हैं, लेकिन हमें पता है हम तीनों चीजें बनाकर भी हमें पापड़ बनाने में ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज है। तो कंट्री को क्या चूज करना चाहिए? जिस गुड प्रोड्यूस करने में या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करने में उससे से कम कॉस्ट लग रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ वो ही कमोडिटी को कंट्री को प्रोड्यूस करना चाहिए। दैट वुड बी गुड फॉर देम, ओके, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मतलब अगर हम किसी और कंट्री से कंपेयर करते हैं, इट वुड बी गुड फॉर देम। डेविड रिकार्डो, हु हैज गिवन द थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट्स in his model of two country two commodity world, again very important question MCQ के लिए भी और नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए भी। ओके, तो ये डेविड रिकार्डो का जो मॉडल है वो 2x2 मॉडल है। इसका मतलब टू कंट्री टू कमोडिटी मॉडल। बताओ मुझे ये कैसा मॉडल है डेविड रिकार्डो का 2x2? तो इसमें 2 क्या है? Two countries, two commodities. वेरी गुड, वेरी गुड। तो टू कंट्रीज टू कमोडिटीज मतलब क्या? तो जब भी हम थियरी के बारे में बात करेंगे, हम थियरी में दो कंट्रीज को एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ ये दो कंट्रीज दो कुछ चीजें बनाने में कॉस्ट एडवांटेज इनके पास है ऐसा देखेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई 2x2 मॉडल पॉइंटेड आउट दैट पोर्तुगाल, you know country, right? Portugal could produce both wine and cloth cheaper than Britain. So अभी के लिए हमारे दो कंट्रीज कौन से? पोर्तुगाल एंड ब्रिटेन। एंड दोनों कंट्रीज में क्या क्या बन रहा है? वाइन एंड क्लॉथ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आपको जल्दी से आंसर करना है। कौन से दो कंट्रीज हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं? पोर्तुगाल एंड ब्रिटन। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। ओके, एंड उसके साथ साथ ये दो कंट्रीज मिलकर कौन सी चीजें बनाने में सक्षम है, अच्छे हैं? वाइन एंड वाइन एंड क्लोथ। करेक्ट, वाइन एंड क्लोथिंग, राइट। सो अभी हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये दो कंट्रीज ऐसे अच्छे अच्छे दो प्रोडक्ट्स बना रही है, तो सिंपली सेइंग कौन से कंट्री को क्या बनाना चाहिए ये हमें डिटरमाइन करना है यूजिंग दिस थियरी। सो मैंने जैसे बोला कि बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ये पता चल रहा है कि ये दो कंट्री क्या बना रही है और उसके हिसाब से हमें कौन से चीजें हैं जो ब्रिटेन को बनाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए, और पोर्तुगाल को क्या बनाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए, क्लॉथ या वाइन। ओके, सो it was the interest of Portugal to concentrate on the production of wine and leave the production. Just a minute, I think, yeah. Pointed out that Portugal could produce both wine and cloth cheaper than Britain, but it possessed a greater cost advantage in wine than in cloth. तो पोर्तुगाल को अगर हम कंपेयर करें तो वाइन बनाने के लिए इनके पास ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज है एज कंपेयर टू क्लॉथ। सो इसकी वजह से हम ऐसे बोल पाएंगे कि पोर्तुगाल को in its best interest it should concentrate on production of wine and leave the production of cloth to Britain। मतलब इनको क्लॉथ को प्रोडक्शन, क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है वो ब्रिटेन पर छोड़ देना चाहिए और इनको वाइन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि इनके यहाँ कॉस्ट एडवांटेज है। In other words, Portugal would exchange its wine with cloth of Britain। मतलब ये दो कंट्री एक दूसरे के साथ क्या एक्सचेंज करेंगे? वाइन एंड क्लॉथ। पोर्तुगाल जो वाइन बनाएगा वो ब्रिटेन में बेचेगा, ब्रिटेन जो क्लॉथ बनाएंगे वो पोर्तुगाल में जाकर बेचेंगे। इट इज दस अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द ओके
सो मी तुमच्या ऍक्च्युली अटेंडन्स शीट तुम्हाला चॅटमध्ये टाकली आहे, यू कॅन चेक. हे टाइम जेव्हा कमी होईल तेव्हा आपल्याला परत एनरोल करायचंय, म्हणून मी तुमचा आज लवकर लेक्चर घेतलाय, कारण मला ही थिअरी शक्य झालं तर कम्प्लीट करायचे. सो हे टाइम जेव्हा बंद होईल तेव्हा प्लीज जॉईन इट अगेन. मी तुम्हाला परत त्यावेळी अटेंडन्स शीट देईन. आत्ताला मी ऑलरेडी तुम्हाला दिली आहे. ओके, सो it is thus the comparative advantage in the production of goods and services what gives rise to international trade according to the theory of comparative cost. म्हणजे या थिअरी प्रमाणे कंट्रीला ज्या गोष्टीत कंपॅरेटिव्ह ऍडव्हान्टेज आहे, म्हणजे जेव्हा आपण दोन कंट्रीजना कम्पेअर करतोय, सो पोर्तुगालला कंपॅरेटिव्हली जी गोष्ट बनवण्यात ऍडव्हान्टेज आहे, पोर्तुगाल को जो चीज बनाने के लिए वाइन या क्लॉथ में से जो चीज बनाने के लिए ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, वही चीज उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए, दैट इज वाइन इन केस ऑफ पोर्तुगाल. और ब्रिटेन को वाइन और क्लॉथ में से क्लॉथ चूज करना चाहिए, क्योंकि इनके पास क्लॉथ बनाने का कंपैरेटिव एडवांटेज है. ओके, सो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. सो ये थियरी हमने बेसिकली क्या स्प्रेड आउट हुई है इसके बारे में, इसका स्कोप कितना है ये देखा. लेट्स सी द assumptions of this theory. Both Ricardo and Mill has developed this theory of comparative cost on certain important assumptions. Obviously, हर एक theory को assumptions रहते हैं. Some of the assumptions were clearly stated, while others were only implicit in their analysis. तो कोई directly बताए गए थे, कोई हमने खोजे हैं through the theory or through the study of theory. The various assumptions of theory are as follows. Let's see the assumptions. Okay, so पहला, production cost mean only labor cost to be expressed in the terms of so many units of labor. So जेव्हा आपण बोलणार आहोत तेव्हा आपण प्रोडक्शन कॉस्ट विषयी बोलणार आहोत, कितना कॉस्ट हो रहा है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन ये जो कॉस्ट है वो हम पैसों में नहीं देखने वाले, ये हम लेबर आवर्स में देखने वाले. मतलब एक लेबर का या फिर कितने लेबर का कितना घंटा जा रहा है काम करने के लिए, एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ये हम देखने वाले. तो सिंपली हम यहाँ पर पैसों के बारे में नहीं लेकिन लेबर कॉस्ट के बारे में बात करने वाले. ओके, लेबर वॉज अज्यूम टू बी द ओनली प्रोडक्टिव फैक्टर हियर, हेंस कॉस्ट वेयर टू बी ट्रीटेड एज लेबर कॉस्ट. क्योंकि ऐसा बोला गया था कि सिर्फ लेबर ही प्रोडक्शन का फैक्टर होना चाहिए, और जो भी फिर हम पैसे देंगे या फिर लेबर कॉस्ट देंगे वो हम लेबर्स को ही देने वाले, तो बाकी की चीजों के लिए कुछ खर्चा नहीं होगा. टू मेक इट इजी, इसलिए हम सिर्फ लेबर कॉस्ट को ही कंसिडर कर रहे हैं. ओके, देन ऑल लेबर्स वेर अज्यूम टू बी होमोजेनस. मतलब हर एक वर्कर जो भी काम कर रहा है वो होमोजिनस सेम टाइप का काम कर रहा है, सेम स्किल सेट उसके पास है, कोई अलग ऐसा कुछ स्पेशलाइज नहीं है. ओके, प्रोडक्शन वॉज अज्यूम टू बी टू टेक place under the condition of constant costs. That is, changes in output were not supposed to affect the unit cost of production. मतलब आपका जो कॉस्ट है प्रोड्यूस करने का एक कमोडिटी को, वो थ्रू आउट प्रोडक्शन सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा. ओके, the fourth one is the factor of productions were perfectly mobile within the country but totally immobile between countries. Again, बहुत ही important, अगर हम क्वेश्चंस के बारे में या फिर डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कंट्री में अगर आप बोल रहे हैं सिर्फ एक कंट्री में, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर, ये सब इजीली मोबाइल है, यहाँ से वहां बहुत ही अच्छे से जा सकते हैं. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू कंट्रीज, देन इन बिटवीन कंट्रीज ये फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इमोबाईल आहे, वो यहाँ से वहां जा नहीं सकते. ओके, सो मला सांगा एकाच कंट्रीमध्ये फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक कंट्री में मोबाइल है या इमोबाइल? मोबाइल. करेक्ट, मोबाइल है. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द कंट्रीज मतलब दो चीजों के दो कंट्रीज के बीच में मोबाइल है या इमोबाइल? इमोबाइल. Correct, very good. It is assumed that the international trade takes place in the goods, in goods only,
and there is no capital movement take place between countries concerned. So ये जो international trade होगा वो सिर्फ goods के बीच में होगा, और हम इसके बीच में, दो countries के बीच में बाकी कुछ exchange नहीं कर पाएंगे. It is assumed that there are no transportation charges, so transportation के कुछ cost नहीं होंगे. It is assumed that international trade is free from all barriers and restraints. तो किसी political law या फिर किसी government law के हिसाब से कुछ भी restrictions नहीं होगा दोनों country में. दोनों country में कुछ भी trade के लिए barriers नहीं होंगे, restraints नहीं होंगे, free trade होगा. Only 2 countries and 2 commodities are to be considered at a time. जैसे मैंने बोला 2x2 model, 2 countries, 2 commodities. There are no disturbances from such sources and the trade cycle. So ऐसे trade cycle में कुछ भी disturbances नहीं होंगे, कुछ problem नहीं होगा trade conduct करने में. Okay, then the two countries have common monetary standard and the quality of theory of money is, quantity theory of money is valid. तो एक्चुअली क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी आपने पहले लास्ट सेमेस्टर में देखी है. दो कंट्रीज में जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड्स है, जो मॉनिटरी स्पेशलाइजेशन है, वो सेम रहेंगे और मॉनिटरी थियरी वैलिड कंसिडर करेंगे हम. तो आई थिंक वी हैव रीच्ड कि हमने अजम्पशंस पूरे देखे, और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर, जब सेम ही लेक्चर आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पर देखेंगे. ओके, सो ज्वाइन इट एज सुन एज इट गेट्स कट. ओके, ये जब कट हो जाएगा लेक्चर, आप जल्दी से ज्वाइन करना. मैंने आपको ऑलरेडी अटेंडेंस शीट